Hello friend, how are you? Today we are going to react Sir APJ Abdul Kalam Attitude Edits एंड सर की बात की जाए तो सर एक ग्रेट पर्सन थे और मतलब इन्होंने अपनी रियल लाइफ में जितना अचीवमेंट करके दिखाई तो वो जो है ना हमारे लिए एक मिसाल है और इनकी लाइफ एक मोटिवेशन है हर पर्सन के लिए कि किस तरह से एक गरीब पर्सन एक गरीब फैमिली से होकर अखबार बेचने वाला लड़का जो है ना एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया और उन्होंने इतना अचीवमेंट की कि आज जो है ना इंडिया के पास जो है ना इतना मिसाइल है इतना जो है ना हथियार है और इतना एटमी पावर है एटॉमिक पावर है तो वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा योगदान सर एपीजे अब्दुल कलाम का है। उन्होंने स्टार्ट किया था ना ये चीजें सारी। हमने इनकी सारी बायोग्राफी भी देखी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इसमें थ्रू और वो जो है ना उससे हमें इतनी चीजें जो है ना पता चली थी कि सर ने कितनी स्ट्रगल करी अपनी पूरी लाइफ ही स्ट्रगल करते करते बिल्कुल और इसी वजह से इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, तो इनके क्लिप्स होने वाले हैं इनकी लाइफ को लेकर कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस भी होने वाली हैं तो वीडियो काफी मजे का होने वाला है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को तक जरूर देखिएगा आपको काफी अच्छा लगेगा तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet, this is unique. गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगे अनके ही बात को समझोगे तो याद आऊंगा हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे सफाई जीस्त को पलटोगे तो याद आऊंगा। Sir, I am poor English. Study in Malayalam medium. മലയാളത്തിൽ പറയും. At present, what are the major strengths and weakness of our India? What are the Major strengths major strength? What are the major strength of India and weakness of our India? and weakness? Fantastic boy. What class you are studying? 7th standard. 7th standard. Okay. Now, strength of India. What the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. My question is that with Pratibha Patil and Sonia Gandhi as the supreme heads of India today, India will face a kind of a feminist movement. What is your opinion on it? You love it. You love it. You know, I personally believe I was propagating with the 50% of the population of women folk. They deserve 33% in parliament. But so far, they have not put forth. If they are 33% in the parliament, what change they will do? What change they will do in the parliament? History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. You've been an inspiration for all of us, but who's been the source of inspiration for you? Only one person. That is when I was a 10-year fellow. 10-year fellow, 5th class I was studying in Rameshwaram Island, okay? Rameshwaram Island. At that time I had one teacher, Siva Subramania Iyer. Oh. That Siva Subramania Iyer, he went to blackboard, blackboard, and he explained how birds fly. The way he explained how birds fly, and the way he made us to ask questions. At the end of the class, I felt not only he taught me how birds fly, he injected me what should be my vision in life, what should be goal in life. मिसाइल मैन ये बहुत मोटिवेशनल था जो साइकिल पे लेके गए थे ना। हाँ साइकिल वाला ना। Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's the question. Well,
Missile man. Whatever may be the depth of the river, or lake, or pond, whatever they may be the conditions of the water, the lily flower always comes out of it and blossoms. Similarly, if there is a definite determination to achieve a goal, even if it is impossible to achieve, the man succeeds. To succeed in life and achieve results, you must understand and master three mighty forces. Oh. Three mighty forces. They are Three. desire, belief, and expectation. इतनी एज में सारे स्ट्रगल नहीं छोड़े। एक छोटे से गांव का लड़का जो कभी गलियों में अखबार बेचता था, आगे चलकर बन गया भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Missile man. वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक शिक्षक थे और भारत के राष्ट्रपति भी। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे एक साधारण परिवार से थे। अच्छा। पैसों की तंगी थी, इसलिए छोटी उम्र में अखबार बेचने लगे। मगर सपनों की ऊंचाई थी आसमान से भी ऊपर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर जुड़ गए इसरो और डीआरडीओ से। सैटेलाइट्स बनाए, मिसाइलें लॉन्च की, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारत को दी। 2002 में बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। मगर पद से ज्यादा उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया। वो थे जनता के राष्ट्रपति, वो थे हर युवा के सपनों की मिसाल। सलाम है उस महान आत्मा को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, ये कितना अच्छा। Health is very important. But one thing I want to tell you, my brother in Rameshwaram is 98. In January he became 98. He gave me advice because I am a irregular eating. That is, I don't follow the right time breakfast, lunch, dinner. My brother advised me, you are a 83 fellow, you want to compete with me 98. You have to follow three things. Number one, walk. Second one, eat at regular time. He eats even now 8 o'clock in the morning, 1 o'clock lunch, and then dinner 8:30, and sleep 9 o'clock. Okay? I designed a 4-line poem-like thing called creativity. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Yes. Knowledge Knowledge is makes so you great. great. रामेश्वरम में मछुआरे का एक परिवार रहता था। बीवी जो थी वो घर की देखभाल करती थी। उनके 5 बच्चे थे। बहुत ही गरीब परिवार था। इसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा। बीवी अक्सर खाली पेट सो जाया करती थी ताकि बच्चे पेट भरकर खा सकें। न जाने माँ की कुर्बानी में ऐसा क्या जादू था कि उनका सबसे छोटा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज निकला। हर क्लास में फर्स्ट आता। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो इंजीनियर बन गया और इसरो में साइंटिस्ट बना। मिसाइल मैन इस नाम से वो मशहूर हुए। कुछ साल पहले उन्होंने पोखरण में परमाणु बम भी टेस्ट किया। क्या आप बता सकते हैं वो महान इंसान कौन है? किसी को नहीं पता क्या? एपीजे अब्दुल कलाम। You know, I worked with 2 prime ministers, okay? When I was a president, I had to work with Vajpayee ji and Manmohan Singh ji. Vajpayee ji, I have seen with him, half I worked, 50% with him in 5 years, 50% with Manmohan Singh ji. Now, Manmohan Singh is an expert in the field, in the finance. No doubt he is an expert in the field. So I value his judgment on the economy and all, and his suggestion to various issues, and that respect I have got for him. Whereas Vajpayee ji takes fast decisions, okay? Fast decision. So this my mind says, these are 2 different. I hope both are complementary. छोटा बच्चा कैसे भाग रहा है? जो उनकी लाइफ से
History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. Bharat Ratna Award winner and India's missile man, Dr. APJ Abdul Kalam. Science is innocent, okay, in the whole affair. Okay, there's no problem with science to religion. There's no problem at all. I want to tell you that. Science, what does it do? It makes, it can make agriculture production high by doing the fertilizer. Okay. So the religions, most of the religions are beautiful. They are all beautiful religions. I have entered into the religion. Whenever I entered the religion, I said beauty. I see that. But they're all islands. We have to put a bridge of love. So religions had been translated as spiritual force. Science nothing to do with that. Science you can use it. So don't have any idea as though science is the villain in that. Science is not a villain. Villain is religion has to be transformed into a spiritual force. There are two components in every religion. One is theology, another is spirituality. Now theology very special for every religion, you can't touch it. Spirituality, if we go deep into every religious sacred document, you find is common. Almost all the religions say that always you think in terms of what can I give. That is the spirituality. So I am advocating why not we connect the spirituality component of the religion and get a bridge to religions, that society and then civilization. बोले बेटा एक सेकंड रुक, यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ से कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे गंगा है। आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा क्या बात हो गई, कहां से आए हो? महाराज केरल से आया हूं, जाने के पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूं, जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर, कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो प्रणाम करते हुए स्वामी जी से बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं? शिवानंद जी ने कहा हाँ बता बेटा। कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी? शिवानंद जी ने कहा नहीं नहीं, तू असफल नहीं हुआ है। भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा। I have studied all religions. There are two components in every religion. One is theology, another is spirituality. Now theology very special for every religion, you can't touch it. But spirituality, if we go deep into every religious sacred document, you find is common. Almost all the religions say that always you think in terms of what can I give. So I am advocating why not we connect the spirituality component of the religion and get a bridge to religion, that society and then civilization. आते एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी खासियत। जिस शख्स ने देश को न्यूक्लियर पावर से नवाजा, जिस शख्स ने देश के लिए नासा का औसत टुकड़ा, जिस शख्स ने एक के बाद एक इतनी मिसाइलें बनाई कि लोग आज मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और पावर के मामले में देश को चौथे स्थान पर ले आया, और ये बड़वा कह रहा है कि वो गद्दार है। मुसलमान अगर उसके बच्चे को कोई डॉक्टर बचाता है, उसको कभी नहीं कहता कि आप अल्लाह हो, वो कहता है अल्लाह के फरिश्ते हो। और हम किसी को भी भगवान कहते देते हैं, किसी को भी। ये मूर्खता की हद है, ये मूर्खता की। Which one was most satisfying for you, being as a president or an ISRO or a lecturer, sir, and why? Well, I personally believe I was a teacher, I was a scientist, technologist, I was the president, but I always developed interest in teaching and research.
मुझे मिल गया है सर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन का सीक्रेट स्टडी टाइम टेबल। इस बार तो मैं ही टॉप करूंगा। जब फेलियर स्टूडेंट आरफ बोला, सब ने उसे इग्नोर किया, लेकिन एग्जाम के बाद, बेटा तूने सच में टॉप कैसे किया? जब टीचर ने पूछा, सर अब्दुल कलाम के स्टडी टाइम टेबल के ये 5 स्टेप्स फॉलो करके। स्टेप 1, अपने दिन को पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करने। सर कलाम सुबह 4 बजे जल्दी उठकर अपना दिन अल्लाह की प्रेयर से शुरू करते हैं। स्टेप 2, जिससे उन्हें दिन भर की एनर्जी और सनलाइट मिल जाती, जब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने अपनी साइकिल पे न्यूज़पेपर बेचने जाते। स्टेप 3, अब स्कूल से पहले ही टीचर से आगे रहने वो 2 घंटे सेल्फ स्टडी को देते। स्टेप 4, दोपहर में स्कूल खत्म कर बेचे हुए पेपर्स के पैसे ले सर कलाम पूरी शाम से लेकर रात तक लगातार घंटों तक नोट्स बना के सेल्फ स्टडी करते हैं। एंड स्टेप 5, रात को सोने से पहले अगले दिन क्या पढ़ना है उसका प्लान बना। एज ए स्टूडेंट भी वो सिर्फ 5 घंटे सोते हैं। कुछ पर्पस तो होता है। जब आप राष्ट्रपति से उनसे आप अवार्ड लेने गए थे, आपने उनके स्टाइल में बाल रख लिए थे, मैं दिखाता हूं। मैं ये क्या स्टोरी मैं सीता पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं, मैंने वाकई में ये प्लान नहीं किया था। ये गलती है फराह खान की। ये सोनू, शिरीष इज ऑल्सो हैविंग द रिबॉन्डेड हेयर, तो तू भी रिबॉन्डेड हेयर करा देना, तेरा भी बाल लंबा हो जाएगा। और मुझे नहीं पता था कि मुझे नेशनल अवार्ड मिलने वाला है कल हुनाओ के लिए सर। लेकिन राष्ट्रपति ने कुछ कहा आपको? मैंने उनको कहा, जैसे वो आए तो उन्होंने मुझे देखा तो मैंने कहा सर सेम हेयर स्टाइल। मैंने कहा सेम हेयर स्टाइल, तो उनका जवाब सुनिए, कॉपीराइट कॉपीराइट। सर मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ सर। What's your name? Vishnu Dinagajit. Which class you are studying? 5th. 5th. What is your dream? My dream is to become an IAS officer. IAS officer. Okay. Tell me, you are a smart fellow. You are a smart boy, smart boy. As an IAS, when you become IAS fellow, what will you do to the country? You say what I am saying, okay? As an IAS officer, repeat with me. As an IAS officer, I will remove the corruption. Remove the corruption. Okay. I would like to ask, religion versus individuality, what would you prioritize? No, religion is a very private affair. Okay, it's a private affair. ये तो हर किसी का private होता है। See, the religion I told you has got 2 common: theology and spiritualism. But as a human being, we should all believe. We have to believe in one thing, that is nation. All of you repeat, nation is bigger than any other aspect in my country. जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। You have supported nuclear weapons. I am dead opposed to India's nuclear weaponization. Mr. Advani considers the building a Ram temple as a nationalist project. I think it's a highly divisive project. No, Mr. Ram, I don't want to take any of your agenda. You got an agenda, you are meeting, okay? Yeah. But the agenda, what I suggest, that you can calibrate what is the national development. That is 220 million people are below poverty line. So how do you bring them up? So that is the agenda. There may be many development going on agriculture to any subject, but agenda is very clear. 220 million people are below poverty, 22% of the people below poverty line. How do you lift them up? What contribution do you make? The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to believe in the last bench student? Because I was the last Even I do, sir.
अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ एक मोटिवेशन है। अगर किसी इंसान को लाइफ में सक्सेस होना है तो उनकी लाइफ को रीड करे और उनके बारे में जाने, तो उसके लिए इनफ है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाया और मतलब इतना बड़ी अचीवमेंट की कि आज दुनिया उनका नेम लेके मोटिवेट होती है और उनको याद करती है। सो ये है उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री जो हमने देखा, इनमें काफी सारे एडिट्स ऐसे हैं जिनमें हमें उनके बारे में जानने को पता लगा कि किस तरह से वो जो है ना इंटरव्यू वाले थे ना, इंटरव्यू वाले फर्स्ट टाइम हमने देखा कि सर मतलब इंटरव्यू कितनी समझदारी वाली बातें करते हैं ना, किस तरह से उन्होंने मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उन्होंने मतलब पुअर फैमिली से होकर भी एजुकेशन हासिल की और उस एजुकेशन के बलबूते पे आज वो दुनिया में उनका नेम लिया जाता है और पूरी दुनिया उनको सराहती है उनकी अचीवमेंट के लिए, उनके काम के लिए, उनकी नॉलेज के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए। बिल्कुल, मतलब जितनी उन्होंने अपना मतलब नॉलेज हासिल की उस सबको जिस तरह से यूटिलाइज किया और इतने बड़े बड़े मिशन जो है ना वो बनाए, मिसाइल मैन उनके नाम से जाने जाते हैं, मतलब इंडिया को एटमी ताकत बना दिया और उसके अलावा प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी सर की, बहुत सारे सर के क्विट्स वगैरह आ रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, इंस्पिरेशन मतलब उनमें होती है, उनकी पूरी लाइफ ही ऐसे समझे मोटिवेशन से ही भरी हुई है। लेकिन सर का जो है ना वो मुझे ये अच्छा लगा, उन्होंने कहा मुझे लर्न करना, जितना टीचर बन गया लेकिन लर्निंग का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि कुछ और जानूं, कुछ और गेन करूं, तो ये बड़ी प्यारी बात है। बिल्कुल, वो भी तो हमने बायोग्राफी में जिस तरह से देखा था ना कि वो बुक्स रीड करते करते सो जाते थे, उन्हें ये होता था कि यार बस ये जो है ना बुक खत्म करनी है, इसके बारे में मुझे जानना है। तो लर्निंग का तो बहुत शौक था सर को। और उसके अलावा देखा जाए पढ़ाने सिखाने का भी क्या वे था, जैसे वो बच्चों को बता रहे थे ना तो कितने अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि बेटा एक्सप्लेन करो, आप लोगों ने ये करना है, ये करना है। और क्रिएटिविटी कितनी कमाल की है ना, मतलब थिंकिंग एबिलिटी भी एक जैसे नेचुरल गॉड गिफ्टेड हो के एक परिंदे को उड़ता हुआ सिखाया, तो उससे मेरे जहन में आया कि ये सारी चीजें इस तरह से होनी चाहिए। तो वो बड़ा प्यारा सर का अंदाज है। बचपन से माइंड में एक चीज आ गई ना कि अब मैंने आगे जाके कुछ करना है। बिल्कुल, और फिर यही होता है कि इंसान अगर कुछ सोच ले और फिर उसको ठान ले तो वो फिर अगर उस पर मेहनत करे उतना ही तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना हमें सर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से सीखने को मिलती है। हमने सर के रिट्स देखे, काफ़ी अच्छा लगा हमें, काफ़ी मोटिवेशनल बातें थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो जिनका मतलब हम खुद सोचते रहते हैं, जैसे रिलीजन के बारे में और कंट्री के बारे में उन्होंने बताया कि रिलीजन इज अ प्राइवेट थिंग और जो कंट्री है वो सब एस्पेक्ट से बड़ा है, यानी कंट्री जो है ना वो सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन रिलीजन है उसको भी वो एक हर किसी का अपना अलग होता है, वो प्राइवेट होता है, उसके बारे में किसी को नहीं हक होता कि उसके बारे में ज्यादा सवाल जवाब करे। और फिर उन्होंने वो जो दूसरी रिलीजन के बारे में वो बताया, थियोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी तो यही है कि हर रिलीजन में उनके हिसाब से मतलब कॉमन एक ही बात सिखाई जाती है कि जितना हो सके आप दें, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें जो है बड़े ही प्यारे अंदाज में सर एपीजे अब्दुल कलाम ही बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर किसी से करो तो उनके जवाब पता नहीं क्या आते हैं, वो पर्सनल हो जाते हैं काफी लोग। एंड यस, जैसे अगर एक क्लिप भी आया होता जिसमें जो पीएम मोदी है वो मतलब किस तरह से वो बच्चे को वो कर रहा था, लड़के को मतलब फोर्स कर रहा था जय जगन्नाथ बोलने को, ये गलत चीज है। जो गलत चीज है उसके लिए तो हर इंसान को बोलना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। सामने वाले का जो भी है उसको आप रिलीजन चीजों को क्यों छेड़ते हो आप, जबकि वही सेम मतलब जब एपीजे अब्दुल कलाम से कोई सवाल पूछता है तो वो उसको इतना प्यारे अंदाज में जवाब देते हैं कि सामने वाला एजुकेट होता है और मोटिवेट होता है। छोटे बच्चे को मोटिवेट करके रख दिया सर ने कि मतलब एक छोटा सा बच्चा है उसको उसके माइंड में भी ये चीज बता दी कि तुम बड़े होके जो है ना सारे जो क्राइम करप्शन उनको खत्म करना। तो क्या ही यार, अलग ही लेवल था सर का। और मतलब इनका रिसेंट जन्मदिन भी आया था तो उसमें हमने कहा कि सर के ऊपर जरूर एक वीडियो बनाए। हमें बड़ी खुशी हुई सर के रिट्स देख के एंड बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है सर को जब भी हम देखते हैं और इनके रिट्स वगैरह देखें या इनका फुल बायोग्राफी वीडियो देखें, बड़ा ही पसंद आता है हमें देखने को। तो बाकी आपने भी हमारे साथ इस वीडियो को देखा, मुझे पता है कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छी बातें भी जानने को मिली होंगी। तो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।